human intervention spoils everything. Correct. It's not that people don't make money. People make a lot of money. I mean, Yes. I know Rakesh Jhunjhunwala personally, and I know the days when he used to wear a rubber chappal and move around us. And I've also been a witness of he not paying the bill and I paying the bill because he had no money. Oh God. Oh. आज मैं किसी को बोलूंगा तो मेरे पे हंसेंगे लोग. नहीं सर, बॉम्बे में तो बड़ी स्टोरीज इस टाइप की है, लोग कैसे और कैसे बन गए. But he has never forgotten old friends. I am telling you this. वो आज भी फोन करके 2-4 माँ बहन की गाली दे ही देता है हमारे को. Because now if anyone wants to meet him, they have to go to Jeffries in Marine Plaza on the first floor after 7 o'clock. मिलेगा आपको, रोज मिलेगा. 2 लीटर की बोतल अपनी लेके आता है रोज वो, और जब तक खत्म नहीं हो हिलता नहीं हो. मैंने बोला तू पागल आदमी क्या है बे? बोलता है बीवी बेटी बेटा सबकी झूठी कस्में खा चुका हूँ सरदार, छूटता नहीं, क्या बोलूं. सरदार के छूट जाते हैं, तेरा क्यों नहीं छूटता? बोलता है क्या करूं यार, दैट इज माय फर्स्ट लव. सर मजा आ जाएगा, आज आपके साथ इंटरेक्शन करने में मजा आ जाएगा. Anytime, anywhere, no problem. I have, unfortunately, people don't know this, but I have taught in at least 20 MBA colleges because I'm a PhD in time cycles. And because of that, I have been given the privilege by all the 20 colleges in Mumbai. During my Anand Rathi days only, I had started teaching because we wanted good students for the junior level. So, my friend Pradeep Gupta, who is the vice chairman of Anand Rathi, he said, Lala, tu jaake padhata kyun nahi hai? मैंने बोला सैटरडे संडे 2 दिन मिलते हैं, वो भी तुम जान से मारेगा क्या अभी? तो बोलता है जान से नहीं मारूंगा, तेरी जान बख्शा रहा हूँ, इधर उधर भटकेगा नहीं तो फिर. Very true. Vinay knows it that I'm very close to Pradeep. Yes. Because Pradeep's first empanelment with an institution was given by me. When they started their firm, the first empanelment Anand Rathi got was from me. That is why the relation goes back. I mean, I know Mr. Rathi for the last now 28 years. When he started his firm, since then I know him. Because the first thing he did was he came to me. And no one could say no to him because he had such a personality. We used to go to him when we required anything in the Birla family. So obviously you have to, give back what good has been done to you. नहीं, बट इंडस्ट्री में कुछ पर्सनालिटी है जैसे राठी साहब जैसा, अगर वो आपके सामने हो तो आपका नेगोशिएटिंग पावर खत्म हो गया. आप कितनी भी प्लानिंग करके जाओ. Yes sir. वो जो बोलेंगे वो फाइनली मानना है आपको. Yes sir, it is over. You can't do anything but listen to him. Now, Pramit ji, I think we should start. It's already 11 बज गए हैं. Hello friends, good morning. I'm Amitabh Chadlani and today we have a special guest with us, Mr. Parmeet Singh Ji Sabarwal, Chief Investing Officer, NMM Securities Mumbai. And we all thank you for taking your time, sir. We are a small group of like-minded people and who are keen to learn wealth management. And it's immense pleasure to introduce you to our group. We are a group of engineers from Government Engineering College, Ujjain 1994 batch. And besides this, few close friends who wants to master the arts of financial discipline and wealth management in life, those also join us. So we all here to learn and grow together. This is our 12th session, and I would like to give a brief details in short of previous sessions. First session was conducted by my friend Mr. Piyush Doshi, Director in Faring Capital. Second session by Mr. Daniel, PMS Baja. Third by Mr. A.K. Prabhakaran, Head of Equity Research, IDBI Capital. Fourth by Mr. Noendu Shekhar, Training Head, Nippon India. Fifth by Mr. Rakesh Rathod, Director, Purnartha Investment and Advisor. Sixth by Mr. Niranjan Subramaniam, Senior Manager, Tata Mutual Funds. Seventh again by Mr. Piyush Doshi,
on creating your own portfolio, value portfolio. 8th by Mr. Gaurav Surya and Alok Chartered on gold jewelry. 9th session by Mr. Arun Kumar from Funds India. Then on 10th by Mr. Dheeraj Manwani, MD, Camelot Ventures Partners, Mumbai. 11th last Sunday by Mr. Before last Sunday with Mr. Siddharth Rastogi, MD, Ambit Asset Management, Mumbai. And today is our 12th session with Mr. Parmeet Singh Ji Sabarwal. This session will be of approximately 1 hour. During first 45 minutes, we'll listen Mr. Parmeet Singh Ji, and rest 15-20 minutes हम लोग जो भी question answer होंगे वो परमीत जी से पूछेंगे. And you can open your mic by yourself during question answer session. We are recording this session for internal distribution in our group for those who missed this session. So thank you, Vinay, for inviting Mr. Parmeet. And over to you, Mr. Vinay, just to introduce Parmeet ji and NMM. Thanks, Amit. So thank you so much, Parmeet Saab, once again for sparing time for us on this Sunday. And what I believe, luckily, since I have been part of the various brokering houses, and part of the fund houses, so I came across both the sides of research, fundamental research as well as technical research. What I found that I'm just talking on the perspective of the depth of the subject and the interest. Or the how much you inclined to listen to the people. So in fundamental, I found that you find a typical typed story. I'm not exaggerating, but fundamental analyst or fundamental research people would talk about macro parameters, what is going to happen to the GDP of the world, GDP of India, micro, macro, all those. In the company side, they will talk about the revenue, EBITDA, PAT level, EBITDA growth. So you'll find a pattern. If you listen to 5 fundamental analysts, you will find a 10% difference, not more than that. However, on the contrary to that, if you discuss with any technical analyst, they must be having at least something of their own. Something, which is very deep in that and very deep rooted. I found that compared to a fundamental analyst, a technical analyst is altogether a different species, a different, approach they bring in. If you listen to 2 technical analysts, I bet that 90% they will differ in terms of their approach. End result could be the same, but so it's always pleasure to listening to the technical analysts, their way to approach. And let me tell you that Parmeet Saab is such a speaker. I think if this session continues for next 5 hours also, you won't even notice the time. I know him, as I said, for last 15 years. His respect in the industry is immense across their audience, across the broking houses, across the research fraternity. Everyone knows him, and the name that we took here, those who are from Mumbai knows Parmeet Saab personally. For example, A.K. Prabhakar is very close friend of him, probably his disciple, I would say, from that perspective. So I won't take much of a time. Parmeet Saab, over to you. We are looking forward to listening to you. Okay, before I start, I want to just clarify 2 things. One, that I have been to Mahakaleshwar many times, and it's a pleasure to speak with people from Ujjain. Second, Prabhakar and Siddharth were my junior colleagues in different places, and fortunately, they are very avid knowledge holders. Now, coming back to the subject. Well, my summer training began in a place which had 1,90,000 crores in 1986. That was in the Unit Trust of India then, when they had the UTI 64 scheme. And for 6 months, we used to have summer training in those days, because I come from Jamnalal Bajaj. And fortunately, I worked under those people who were the godfathers of the industry at that point in time. We only used to do fundamental analysis, as Vinayji said. And according to me, fundamental analysis is nothing but a skeleton. Reliance Industries has its refinery in Jamnagar, had its refinery in Jamnagar, will have its refinery always in Jamnagar. It cannot come to Bhavnagar. However, the price of Reliance changes every day. How does it change? That is only because of technical analysis.
So basically, what is technical analysis? Technical analysis is nothing but a math, a science, as well as an art. Now, as Vinayji said, that two people differ. Why do they differ? Because one feels that the glass is half empty, the other feels the glass is half full. That is why you have a buyer and you have a seller. It doesn't happen because of fundamentals. If it were because of fundamentals, then why would a Reliance go from 900 to 2300? It is only because of demand and supply. So economics is a word which is nothing but a synonym with technical analysis. Technical analysis only tells you about demand and supply. Technical analysis is historical. Alexander came to India, and on the basis of that, from Alexander came to India to Modi is ruling this country, technical analysis gives you the entire history. On the basis of this history, as we say, history repeats itself, so technical analysis is always right. Where do technical analysts go wrong is when they use their own brains. The moment you start human intervention with the charts, that is where you go wrong. The moment you start by thinking that the chart is just a chart, I have more knowledge, that is where you go bonkers. That is where you go wrong. I have always seen, I was never a fan of technical analysis till I became a head of equities in the IDBI Asset Management Company, where one of my own brokers, he sent me a technical analyst, and the broker is very well known by the name of Prabhudas Leeladhar. His chief technical analyst was Hitesh Shah. So one day he came and he told me, "Sir, आप ये share क्यों ले रहे हैं?" So I told him, अच्छा लगता है. He saying, मैं आपको बताऊंगा कि आपको इससे सस्ता मिलेगा ये. मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है भाई, मेरे को तो 4% लेना है. बोला सर आप 40% ले लोगे तो भी ये जाएगा. So I said, what? I was like zapped. I said, show me, because I'm even today I'm an avid learner. I like to learn. If someone can show me something which I don't know, why should I not learn it? Obviously, the more you learn, the more you earn. That is the reason I do not invest in stocks myself. I don't have a demat account. The reason is very clear, that when I was in UTI, my boss used to tell me, अगर तू खाना बना के लोगों को नहीं खिलाएगा तो साले खुद भी मरेगा और लोग भी मरेंगे, क्योंकि तू ज्यादा दिन खाना पकड़ कर खा नहीं पाएगा. So I said, okay. Then I said, he said, you have to promise me. I said, yes, sir. Over your life, I promise you, I will never open a demat account. In fact, Vinay Mahajan knows that I was the only non-Marwadi in Anand Rathi who got the ESOPs. And still, the ESOPs are lying in my cupboard. I said, when the company gets listed, I will open a demat account. अब है ही नहीं company तो खुली ही नहीं है, listed ही नहीं है, तो मैं उसका क्या करूँगा? That is the only share I hold with pride. That is okay. Now, coming back to technicals, it's a science, it's an art. Why science? Because there are two theories involved, the Dow theory and the Elliott wave theory. Why art? Because you have to go through those theories and then take a decision whether the technical analysis that the technical analysis that you are watching, is it in line with what you are thinking? First of all, most of the people go wrong because they have no knowledge. 99% of the people who have lost money is only because they have heard somebody make money. अगर मुझे स्टील की इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टील के स्टॉक्स खरीद के. अगर मुझे कपड़े के बारे में पता नहीं है तो मैं अरविंद सेंचुरी टेक्सटाइल लूंगा, कभी भी नहीं कमाऊंगा. अगर मेरे को आईटी के बारे में पता नहीं है तो मैं टीसीएस इन्फोसिस लेके कभी नहीं कमाऊंगा. मुझे पहले खुद को ज्ञान होना चाहिए कि मैं क्या खरीदने जा रहा हूँ. एंड वेरी ऑनेस्टली, नॉलेज इज नथिंग बट समथिंग, एज वी से, माँ सरस्वती का ज्ञान होता है. इसीलिए माँ सरस्वती बैठी होती है और लक्ष्मी खड़ी होती है. आप सरस्वती से धन कमा सकते हैं, लेकिन धन लेके ज्ञान नहीं पा सकते.
So टेक्निकल एनालिसिस इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी. आप जितना भी चाहो, जितना भी चाहो, आपको रोज सीखना पड़ेगा. आप ये नहीं बोल सकते मैंने एक बार सीख लिया अब मुझे सब कुछ आता है. कुछ नहीं आता, क्योंकि हर दिन डायनामिक्स इस मार्केट के बदलते हैं. हर दिन लोगों की तादाद बदलती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है. आई एम फॉर्चुनेटली लकी टू बी अ कॉन्ट्रेरियन. जब लोग बेच रहे होते हैं तब मैं जाके ले रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे जितना चाहिए उतना मिलता है, और जब मुझे जितना चाहिए उतना मिलता है, जिस भाव में चाहिए उस भाव में मिलता है. दूसरे क्या करते हैं, चलती गाड़ी में पैर रखते हैं, या गाड़ी के अंदर या गाड़ी के नीचे. मैं वो रिस्क लेता ही नहीं. गाड़ी आके खड़ी हुई, आप आराम से बैठे, आपको आराम से जगह मिलेगी. क्यों नहीं हम लोग पेशेंस रखते हैं? जो पेशेंस रखता है वो राकेश झुंझुनवाला बनता है. जो पेशेंस रखता है वो राधा किशन दमानी बनता है. जो पेशेंस रखता है वो ही कामयाब है इस बाजार में. अगर हर्ड मेंटालिटी की तरह आप भी हर दिन जाके सिर्फ लेंगे बेचेंगे, मैं आपको बोल सकता हूं इन द एंड ब्रोकर के पास मर्सिडीज रहेगी, आपके पास साइकिल भी नहीं रहेगी. तो आपको क्या करना चाहिए? 98% time of the year you have to spend in learning what you have to do, and only 2% of the year you have to buy or sell. मैं जो भी खरीदता हूं मैं लॉन्ग टर्म खरीदता हूं. मैंने कभी सट्टा नहीं मारा. मेरे को अगर कोई बोलेगा स्पेकुलेशन करो तो मैं उसको सीधा बोल दूंगा, तू एक काम कर ले बेटा, जहर खा ले, क्योंकि तू वैसे ही मरने वाला है. I never speculate in my life. I don't allow people to speculate. My products are never speculation. We are only looking up at the north, because as Hindus, we are all born Hindus, okay? Whether I'm a Sikh or not, Sikhism came out of Hinduism. And we always join our hands and look up. We never look down. So we always look up at north. When you look up at north, you have to buy and hold. Buy when the market is in the south, and then from Kanyakumari, you can fly straight to Kashmir. You will make so much money that you will have no knowledge where this money came from. Also, in technical analysis, see, looking at charts, going by what the people are saying, no, you have to analyze everything by yourself. How do you analyze? Is by learning more every day. Religiously, 2 times a day, after I come back from work and before I start my market. Anywhere I have gone, including NNM, they call me the Gurkha, because I'm the first person who reaches office by 7 o'clock. Why? Because I need 2 hours just before the market starts to analyze what I'm supposed to do, what I'm going to do. It so happens that everything gets discounted by 7 in the morning for Indian markets. The Dow has closed, the Asian markets are open, and then you're opening. So you know what has happened there, what has happened here. And these are the only 2 big markets of the world. The entire Asia, that is Hang Seng, Nikkei, the Chinese market, and the American market. If you can analyze these markets, Europe is always small. Europe used to be big, but India is bigger. So fortunately for me, we are lucky. Because we start at such a time when we have everything in our hand. जैसे मेरे को लगता है कि डाउ जोन्स में कुछ तेजी थी और एशियन मार्केट्स वीक है, तो आई एम नॉट अ पर्सन हु गेट्स इनटू द मार्केट एट 9:15. मेरा पहला सौदा विल बी ऑलवेज अराउंड 11:30. पहले मैं तो समझूं कि हो क्या रहा है. लोग क्या करते हैं, 9:15 पे मार मेरा. ब्रोकर को क्या है, यही चाहिए. उसको तो क्या है, उसको कमीशन लेनी है, वो ले लेगा. कमाओगे आप, कमाओगे आप. लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है, मैं पहले ब्रोकर्स पे एतबार नहीं करता था. When I was in the buy side, I never used to trust brokers. But when I came on the sell side, I realized these are the true people who guide you properly. ये बात और है कि हमारे पास बड़ा पैसा होता है फंड्स में, हम लोग ब्रोकर की कोई इज्जत ही नहीं करते.
बोला बोला इसका काम यही है, हमको लूट रहा है। क्योंकि कईयों ने किया भी ऐसा, लेकिन जो सही है वो सही ही रहेंगे और जो गलत है वो कभी सुधर नहीं सकते। फंड हाउसेस में भी गलत लोग हैं, मैं नहीं बोलता हूँ कि सारे ही शाद हैं, बहुत गलत लोग हैं वहां पे भी, जिन्होंने बंगले बना लिए, गाड़ियां बना ली। वो क्या 7,000, 8,000, 10,000, 20,000 पगार में कोई बना पाता है? ये किसी और को बनाया, मुझे नहीं बनाया, मैंने तो खुद देखा हुआ है। मेरे को तो राज ठाकरे ने धमकी दी थी, तेरे को बंबई में रहना है कि नहीं बे? मैं बोला क्यों भाई, मैंने क्या गलती कर दी? बोला मैंने एक ब्रोकर का तेरे को नाम दिया, तूने उसको क्यों नहीं पैनल पे लिया? ऐसी ऐसी धमकियां आती हैं फंड हाउसेस, क्योंकि वो सब लिंक रहते हैं उनके। तो मैंने बोला भाई, मैंने तो हाँ कर दी, उस समय ये जूम वूम तो होते नहीं थे। मैंने बोला आप अपना बंदा भेज दो, मैं आपको एक कॉपी दिखा देता हूँ, मैंने आगे भेज दिया है। अब आप आगे जानो, वो क्यों नहीं दे रहे उसको? मैं थोड़ी कर सकता हूँ, मेरे हाथ में थोड़ी पावर है, मैं तो खाली रिकमेंड कर सकता हूँ कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है। तब जाके उसने मेरी जान छोड़ी। तो लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक नाउ। ये स्टोरियां तो चलती रहेंगी, इसीलिए विनय भाई ने बोला 5 घंटे भी कम पड़ेंगे प्रमीत के लिए। तो तो बेसिकली व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? नाउ लेट्स गेट टू द कोर. Technical analysis is an art, is a science. I told you, art, as you have to determine whether the glass is half empty or glass is half full. Ab, what would you say to this? कोई बोलेगा अच्छा लग रहा है, कोई बोलेगा खराब लग रहा है। तो आपको ये एनालाइज करना है कि आपको करना क्या है। लोग बोलते हैं कि सिर्फ बाय करके पैसा बनता है, मैं बोलता हूँ नहीं, सेल करके भी पैसा बनता है। अगर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया तो आप नया ले ही नहीं पाएंगे, बिकॉज मनी इन योर हैंड इज लिमिटेड, अपॉर्चुनिटीज इन दिस मार्केट आर अनलिमिटेड। दैट इज अगेन इकोनॉमिक्स। डिमांड इज ऑलवेज मोर देन सप्लाई। तो आपको ये एनालाइज करना है कि आपको करना क्या है। द फर्स्ट रूल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इज, जहां पे वॉल्यूम नहीं है आप टेक्निकल एनालिसिस कर ही नहीं सकते। उसकी वजह है कि टेक्निकल एनालिसिस जहां पे वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां पे धोखाधड़ी कम होगी, वहां पे मैनिपुलेशन कम होगी। मैं बोलता हूं ना, मैं आपको 10,000 करोड़ देता हूं, आप निफ्टी को भगा के दिखाओ, आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें इतनी वॉल्यूम है। अगर आप 10,000 करोड़ का माल लेने जाओगे, कोई ना कोई तो उधर खड़ा होगा बेचने के लिए, वो शुक्र करेगा आप आओ और वो दे। तो जिस चीज में डिमांड नहीं है, जिस चीज में वॉल्यूम नहीं है, वहां टेक्निकल एनालिसिस काम ही नहीं कर सकती। इसीलिए प्रमीत सबरवाल ने जिंदगी में टॉप 100 कंपनी से आगे कभी भी कोई कंपनी देखी ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम जो मार्केट का है ये टॉप 100 कंपनीज में ही है। जो क्लास है वो इन 100 कंपनीज में ही है। आप अगर जेड कैटेगरी के स्टॉक खरीदने जाओगे तो उसमें मैनिपुलेशन 100% हो रही होगी। लोग बोलते हैं छगनलाल मगनलाल लिमिटेड ले लो, मैं बोलता हूँ जाओ जहर खा के मर जाओ, हम कभी भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उसमें वॉल्यूम, आप होली में लोगे, दिवाली में भी नहीं बिकेगी। मैंने 5% अगर कोई फालतू कंपनी ले ली तो मेरे पिताजी ऊपर से भी आके नहीं बेच पाएंगे वो, क्योंकि देने वाले ने तो आपको पहना दिया और चल दिया वो पैसे लेके, आप किसको बेचोगे? नेवर बाय एनीथिंग इन दिस मार्केट दैट डज नॉट हैव वॉल्यूम। और ये गधे की सोच है कि मुझे डबल तक बेचना ही नहीं है, पैसा उसी ने कमाया है। मेरा जो प्रोडक्ट है, विनय जी को पता होगा, मेरा जो प्रोडक्ट है, कोविड के होते हुए भी मैंने क्लाइंट्स को 30% रिटर्न दिया है लास्ट ईयर। अभी कोविड के चलते हुए एक लेडी ने हमारे यहाँ पे खाता खोला, बोला नहीं आपने जो मुझे समझाया मेरे को समझ आ गई, आप अभी खोलो। मैंने बोला मैडम मुझे डर लगता है कोविड से। बोला मुझे नहीं डर लगता ना, आपको डर लगता है तो क्या है? सर वी हैव गिवन her already 22% in 6 months because we only believe that whatever goes up has to come down and whatever goes down has to come up, provided it has got class. आप कोई भी बाटा की दुकान में जाके शूज ले लीजिए, अगर अगले दिन आप घर जाके पहनेंगे और अगर उसका धागा निकला हुआ
अब बाटा की दुकान में जाओगे तो वो रिप्लेस कर देगा, खाली वो एक ही चीज बोलेगा, भाई बिल तो दिखा दे, मैं नहीं था यहाँ पे, बिल दिखा दे। लेकिन अगर आप रास्ते पे लोगे तो अगला बोले मेरे से बूटी नहीं लिए तुम, आप क्या कर लोगे उसको? मेरे को अभी याद आया, आपके उज्जैन में मेरा एक बहुत पुराना दोस्त रहता है जो सहारा का इन्वेस्टमेंट ऑफिसर था, उसका नाम है इंद्रनील बासु। कोई आप में से जानते भी होंगे उनको, वो भी उज्जैन में ही रहते हैं, एंड वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। वो बात करते करते मेरे को ध्यान आया, मैं बोला यार अपना इंद्रनील भी उधर रहता है, एंड ही इज अ वेरी वेरी shrewd guy. Anyways, coming back to technical analysis, there are three different ways you can analyze within technical analysis. The first way is a line chart. What is a line chart? बॉम्बे से दिल्ली का जो रोड मैप है, जो रोड है, वो रास्ता आपको बताता है कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। सिंपल एक लाइन रहती है, या वो ऊपर जा रही है या वो नीचे आ रही है, तो आपको वो लाइन एनालाइज करनी होती है। दूसरा इज कॉल्ड अ बार चार्ट। वो बार आपको ओपन ऑफ द स्टॉक, हाई ऑफ द स्टॉक, लो ऑफ द स्टॉक और क्लोजिंग ऑफ द स्टॉक बताता है। और तीसरा कैंडल स्टिक्स, कि भाई किस शेयर का किस दिन, किस महीने, किस साल में कितना वॉल्यूम किस रेट पे हुआ था। अगर ये आप तीनों चीज एनालाइज कर लो, आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप बाय एंड होल्ड करोगे तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, हाउएवर इट फेल इन अ डे। तो जब आप देखते हो कि मार्केट ऊपर जाने के लिए 4 साल लगाता है, गिरने के लिए 1 महीने में काम पे लग जाता है। सो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। जो पैसा बनता है ना, उसको आपको काबू करना चाहिए। आई एम श्योर, इज देयर एनी लेडी हियर? Amitabh, is there any lady around? Yes, yes, Agya is there. Okay. Now you will always notice that the best fund managers of this world have been ladies. That's why I asked. आप देख लीजिए परफॉर्मेंस। Agya is a registrar in Jabalpur University. Yes, so that's what I'm saying that the ladies, when they buy, they are always patient. It is a man who's not patient, जो हर चीज में जल्दी रहती है। बाजू वाले ने मर्सिडीज लिया, मैं कम से कम फेरारी लूंगा। अरे भाई साइकिल पहले ले ले। तो हमेशा आप देखिए, वर्ल्ड्स बेस्ट फंड मैनेजर अकॉर्डिंग टू मी वाज माय ओन मदर, क्योंकि जो पापा उसको पैसे देते थे उसमें से भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो साइड पे रख लेती थी। That is why I asked if there is a lady, my compliments to her, that they are better fund managers than us, because we are impatient people. हमको सब कुछ जल्दी चाहिए। They have the patience, क्योंकि घर उन्होंने चलाना है, तो उनका लेवल ऑफ पेशेंस एक अलग लेवल का रहता है। आप और मैं, हर आदमी ने बोला था कोविड में मैं भी मदद करूंगा, मैं चैलेंज मारता हूं, आप में से एक भी मदद नहीं कर रहा उनकी अभी। वो पहले 2-4 दिन मजे में सबने किया, उसके बाद बोला कि आपको घर साफ करना है, हाँ कर दूंगा ना, पूरे दिन पड़ा है, हो गई बात। So that is the level of impatience. So coming back, line chart, bar chart, and your candlesticks. These are the 3 things which give you an idea where the stock went in the day, in the week, in the month, in the quarter, in the year, historically. When did Alexander come to India, and how was the roadmap of India till Modi became the Prime Minister or is the Prime Minister? This is what technical analysis tells you. And on the basis of his performance, you can gauge whether BJP will be in power in 2024 or not. That is when you buy, you hold.
If he's good, he will stay. If he's bad, he will go. That is your analysis. The 100, as he says, 130 करोड़ की जो आबादी है, ये डिसाइड करेगी कि मोदी साहब रहेंगे कि नहीं. मैं और आप नहीं कर सकते. हम कितना भी उसको अच्छा बोले, लेकिन अगर लोग नहीं बोलेंगे तो वो नहीं आ पाएंगे. सिमिलरली स्टॉक जो चलता है वो वॉल्यूम के हिसाब से चलता है. अगर सेलर बड़ा है तो वो स्टॉक रुकेगा, और अच्छा रहा तो रुकने के बाद फिर चलेगा. लोग बोलते हैं मॉर्गन स्टैनली बेच रहा है. मैं बोला शुक्र है माल मिल रहा है. तो ये सोच गलत होती है कि कोई बेच रहा है, उसकी क्या वजह है बेचने की वो जानता है, आप थोड़ी जानते हो सकता है उसको एलोकेशन कहीं और करनी हो सकता है आप बेच रहे हो तो आपको पैसे की जरूरत है. ये जरूरी नहीं है कि स्टॉक गलत है. वो आपको टेक्निकल एनालिसिस दिखाता है. और मैंने जब वॉल्यूम बोला था तो टेक्निकल एनालिसिस जो ये 3 चीजें हैं, इसके साथ में वॉल्यूम्स रोज देता है. हायर वॉल्यूम पे या स्टॉक गिरेगा या स्टॉक बढ़ेगा. कभी भी छोटी वॉल्यूम पे ना गिरेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि निकलने वाला और लेने वाला दोनों हैवी वॉल्यूम से लेंगे या बेचेंगे. आप देख रहे होगे मार्केट्स अगर बढ़ते हैं तो वो हैवी वॉल्यूम से ही बढ़ते हैं, गिरते हैं तो भी हैवी वॉल्यूम से ही गिरते हैं. तो ये कौन प्रिडिक्ट करता है? फंडामेंटल नहीं करते, ये टेक्निकल्स करते हैं. और जो टेक्निकल्स खेलता है, मैं आपको बता सकता हूं, मैं वही बता रहा था कि 92 में जब मुझे वो बंदा मिला, उसने मेरी आंखें खोल दी. मैंने बोला सरदार तू एकदम गलत काम कर रहा था आज तक, इसीलिए तेरा रिजल्ट ठीक नहीं आता था. आप मानेंगे आज मुझे फंडामेंटल देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 100 कंपनी के तो फंडामेंटल हमेशा ठीक रहने वाले हैं. वो कहां जाएंगे? अब मैं बोलूंगा रिलायंस का फंडामेंटल मैं जानूंगा, ओ भाई ये हो ही नहीं सकता. मैं क्या ग्रासिम का फंडामेंटल जानूंगा? मैं क्या इन्फोसिस का फंडामेंटल जानूंगा? जरूरत ही नहीं है. देखो ना चार्ट, आपको पता लग जाएगा कि डिमांड है कि सप्लाई है. तो ये होता है कि जो बेस, जैसे बोलते हैं हम टेक ऑफ स्टेज, टेक्निकल एनालिसिस की टेक ऑफ स्टेज ये है कि ये 3 चीजें आपको एनालाइज करनी है. जब आप टेक ऑफ कर गए तो वो आपके ऊपर है, आपको कैसे जाना है. अब बॉम्बे दिल्ली फ्लाइट है, कभी प्रतापगढ़ के ऊपर से जाती है, कभी जयपुर के ऊपर से जाती है. आपके पायलट के ऊपर है उसको कहां जाना है, लेकिन लैंड तो उसको पालम पे ही करना है. वो कहीं भी जाए उसको दिल्ली एयरपोर्ट पे ही उतरना है. टेकिंग ऑफ इज अ किड्स जॉब. बच्चा भी टेक ऑफ कर सकता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लैंडिंग. जो टेक्निकल एनालिसिस देख के 10% 20% कमा के निकलता है, वो बंदा कभी भी नुकसान नहीं कर सकता. ये मरते कौन है? जिनको डबल तक वेट करना. इंटरेस्ट रेट कंट्री के 5%, रिटर्न आपकी 3.5% और टैक्स डिडक्टेड सोर्स के बाद, फिर भी 100% तक आपको हिलना नहीं है, तो मरना ही मरना है. क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जो बोलेगा यार 20% बहुत हो गया, मेरा पेट भर गया, मैं निकल रहा हूं. आप देखते ही रह जाओगे, वो 20 वाला वापस 0 हो जाएगा. बोलोगे यार ये क्या हो गया, ये कंपनी गलत है. कंपनी कैसे गलत है? आपका दिमाग गलत है, सोच गलत है. सब कुछ लूटना है एक ही दिन में, ऐसे नहीं होता है भाई. You cannot do things which are beyond your control. You have to do things which are in your control. मेरे को मेरा जो गुरु था उसने एक चीज सिखाई थी, the speed that thrills is always the speed that kills. जिस चीज की रफ्तार ज्यादा होगी वहां पे पंचनामा ही होगा. तो आपको वो स्पीड नहीं रखनी है. आपको स्पीड क्या रखनी है? लिया सो गए, क्योंकि हमें पता है कि हमने अच्छी चीज ली है. जैसे ही कुछ अच्छा आया तो वो चीज बढ़ेगी ही बढ़ेगी. एक खूबी की बात ये बताता हूं, मुझे 1000 लोगों ने तो कम से कम पूछा होगा यार गलत रिजल्ट में तो क्यों खरीदता है. मैंने बोला सरदार हूं ना, सब उल्टे काम कर दो. बोला नहीं ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि
परमीत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, रीस्टार्ट हो रहा है। Discounted, the market has discounted that the worst is over. And with the best result, the market has discounted the best is over. बहुत अच्छे रिजल्ट पे आप देखते होगे स्टॉक गिरता है। बोनस, जिस कंपनी ने बोनस दिया वो कंपनी क्या गलत हो सकती है, लेकिन एक्स बोनस भाव क्यों गिरता है? क्योंकि द बेस्ट इज ओवर। These are very small things, but trust you and me, they are very, very important. That's what I said. When people come to Churchgate in Mumbai every day, 9,999 lose, only one makes. That one is a very patient person. Today, I have close to 380 accounts, which I'm handling, which is an average of 25 lakhs each. 10 crore wale bhi hain. Out of this, trust you and me, 200 are ladies. उनको पहले कभी भी एतबार नहीं आएगा, लेकिन अगर एतबार आ गया ना, उनका अगर पोर्टफोलियो नेगेटिव 20% भी हो गया ना, वो एतबार नहीं जाएगा। क्योंकि मैं जब पहली बार किसी को मिलता हूं ना, मैं उनको पहली बात यही बोल देता हूं, याद रखना मैडम और सर, मैं 25 साल की उम्र में एक दिन में मेरे को एक फंड दिया गया था 3,500 करोड़ का, अर्ली 90s में। एक दिन में मैंने 350 करोड़ गंवाया था। ये मार्केट ऐसी है। तो बोला 350 करोड़ कैसे गंवा सकता है कोई? मैंने बोला थैंक्स टू मधु दंडवते, हु वाज द देन फाइनेंस मिनिस्टर, ही हैड द फर्स्ट रूपी डिवैल्यूएशन। टेक्निकल एनालिसिस ऑलवेज टेल्स यू व्हाट इज गोइंग टू कम, लेकिन हम लोग समझते नहीं। इट हैड शोन मी, उस समय निफ्टी नहीं होता था, उस समय सेंसेक्स होता था। वो बता रहा था कि सेंसेक्स गिरने वाला है, लेकिन हम होशियार बनते हैं ना उसके सामने। इसीलिए मैंने बोला कि टेक्निकल एनालिसिस कभी भी गलत नहीं होता, हमारी सोच गलत होती है। द मोमेंट ह्यूमन इंटरवेंशन कम्स, गए आप। इसके लिए मैं रिलीजियसली फॉलो करता हूं, अगर वो बोलता है हाँ तो हाँ, ना तो ना। इसीलिए मैं 11:30 बजे तक कुछ नहीं लेता। There is a saying in English that to be safe is better than cure. क्योर के लिए आपको दर्द बहुत होगा, एक बार ठीक हो जाओगे, लेकिन सेफ होने से दर्द भी नहीं होगा। तो सेफ होने के लिए 2 घंटे दे दो ना मार्केट को, कहां भागने वाला है? 2 रुपए महंगा खरीदोगे और क्या होएगा? लेकिन ये तो गारंटी हो जाएगी कि आप जो खरीद रहे हो सही खरीद रहे हो। ये लोग समझना ही नहीं चाहते। 9:15 में मेरा सौदा क्यों नहीं हुआ, ब्रोकर को 2 माँ बहन की गालियां दे देंगे। अरे भाई, वो आपके भले के लिए है। जब मार्केट उसको लगता है कि नहीं लेना चाहिए, वो आपको हमेशा बोलेगा सर रुक जाओ मत लो। आप बोलोगे चल बे, तेरे को क्या मालूम है, गई भैंस पानी में। जब उसको पता है कि एक्सचेंज ने मार्जिन बढ़ा दिया है, जब सेबी आपको रोज बोल रही है, तो वो आपको बोलेगा कभी मत खरीदना, क्योंकि उसको आपको मरने नहीं देना है। ब्रोकर कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका क्लाइंट मरे, क्योंकि उसकी रोटी बंद हो जाएगी। मैं बोलता हूं ना, पागल है वो लोग जो ब्रोकर की बात नहीं सुनते। आप जाके किसी भी ब्रोकर को पूछो क्या लेने जैसा लगता है, पहले तो वो हाँ कभी भी नहीं बताएगा, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आती। और जो जिसको समझ आती है वो आपको 3 नाम ले लेगा। और अगर उसमें से एक भी गलत शेयर हुआ ना, तो मैं ये मार्केट छोड़ने को तैयार हूं, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो वो नहीं बचेगा। आप क्या करोगे? 10,000 10 लाख का माल लोगे, उससे उसका पेट भी नहीं भरेगा, उसकी सैलरी नहीं निकलेगी लोगों की। वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। मैंने बोला ना, मैं खुद ब्रोकरों को गालियां देता था। आज मैं कहां काम कर रहा हूं? किसी ब्रोकर के पास। क्यों? क्योंकि मुझे समझ आ गई, दिस इज द ओनली फ्रेटर्निटी दैट कैन हेल्प यू बिकमिंग रिच। आप नमक लेने जाओ दुकान पे,
बोलेगा लेना है तो लेने दो चल। ब्रोकर कभी भी आपसे ऐसी बात नहीं करेगा। पहले वो आपको समझेगा, आपकी नीड को समझेगा। ओके, ये चार्ट्स में ना, जब हम चार्ट्स देखते हैं, ये पहली तीन देखने के बाद, तीन चीजें देखने के बाद, फिर the charts go into the depth, but these three things are the most important. They give you a guideline where you are heading for. जैसे मैंने बोला, प्लेन टेक ऑफ हुआ, जू के ऊपर गया, दिल्ली जाना है तो आप लेफ्ट टर्न नहीं मार सकते, आपको राइट टर्न ही मारनी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली राइट में आता है। तो चार्ट्स आपको हमेशा बताएंगे आपका रूट क्या होना चाहिए, लेना है या बेचना है या रुकना है। ये जो आता है ना, बाय होल्ड सेल, बाय होल्ड सेल, ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस देख के ही आता है, फंडामेंटल से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो स्केलेटन होता है। क्या कर लोगे आप अगर मैं बोलता हूं, क्या कर लोगे आप अगर रिजल्ट खराब आया? फंडामेंटल चेंज हो गए। लेकिन अगर टेक्निकल ने बोल दिया कि यार लेना है, तो रिजल्ट क्या कर लेगा उसका? आप देखते होगे कि आरबीआई का जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो भी मार्केट बढ़ जाता है, और इंटरेस्ट रेट घटता है तो भी मार्केट घट जाता है। क्यों? बिकॉज टेक्निकल्स आपको पहले बता देते हैं बेस्ट इज ओवर और वर्स्ट इज ओवर। टेक्निकल एनालिसिस इज लाइक योर ग्रैंडमदर व्हेन यू आर गोइंग टू लीव द हाउस, वो बोलेगी बादल है बेटा छतरी ले जा, आप उसको बोलोगे चल यार इसको क्या पता है, दिमाग खाते रहती है। लेकिन जब आप भीगोगे और चीख मार रहे होगे ना, तब आपको याद आएगा नहीं, दादी सही बोल रही थी। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का काम है। टेक्निकल एनालिसिस जितना आप चाहो उतना आप गहराई में जा सकते हो। लोग बोलते हैं ना 11,200 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, जिसने ऐसा बोल दिया ना उसको चप्पल निकाल के मारना। वो क्या भगवान है? कैन यू टच द स्काई? कभी भी नहीं हो सकता। कितना भी आप ऊपर चले जाओ, स्काई और ऊपर जाएगा। हाउ कैन यू प्रिडिक्ट द हाइट ऑफ द स्काई? कैन यू प्रिडिक्ट द डेप्थ ऑफ द पैसिफिक ओशन? नो। आप जितना भी नीचे जाओगे छाती फट जाएगी आपकी, लेकिन आप नीचे टच नहीं कर पाओगे उसको। टेक्निकल एनालिसिस इज अ रूट दैट टेल्स यू कि भैया बच लो या चलो घर भी बेच के पैसा लगाओ। और जिसने टेक्निकल एनालिसिस सीख ली ना, मैं बोलता हूं ना, ये जेम्स बॉन्ड मूवी जैसा है, इतना मजा आता है। मेरे को तो खैर नशा है मार्केट का। मेरे को 102 बुखार था, तो मैंने मेरी बीवी को रात को 3 बजे झटका मार के धक्का मार के उठाया। मैंने बोला एसीसी का भाव तो बता। बोलती तू पागल हो गया क्या, बुखार में एसीसी का भाव पूछ रहे? मैंने बोला नहीं, मैंने सोचा मेरा कलीग मेरे बाजू में बैठा। तो ये नशा वैसा है। मैं बोलता हूँ ना, दारू का चरस का क्या नशा होगा जो टेक्निकल एनालिसिस वाले का नशा होता है। आपके सामने पकवान पड़े होंगे ना, आप छोड़ दोगे, बोलोगे नहीं 1 मिनट में आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं एक घंटे तक आप नहीं जाओगे। प्रभाकर, एके प्रभाकर is very good in technical analysis. I'm telling you, he's very good in technical analysis. उसकी जो डेप्थ है ना, वो by God, he's too good. और सिद्धार्थ उतना ही नफरत करता है टेक्निकल एनालिसिस। दोनों एक्सट्रीम, मिडिल पाथ में मैं हूं कि मैं दोनों को संभाल लेता हूं। हाँ भाई, तेरी क्वार्टर का रिजल्ट क्या बोलता है? तो तभी प्रभाकर बोलेगा प्रामित इट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब जैसे बोतलें पी रहे हैं हम लोग, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बोला फंडामेंटल इज लाइक दैट, यू लुक एट दिस। तो बेसिकली हर एक का एक अपना तरीका रहता है। मंजिल वही है, दिल्ली जाना।
कभी भी मैंने किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट को ये नहीं बोला कि सुना नहीं कभी अपने कान से कि ये शेयर यहां से डबल हो जाएगा। जो सही है, जो टट पूंजी है वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन जो सही है वो ये बोलेगा 10% रिटर्न फ्रॉम हियर, 15% रिटर्न, मैक्सिमम 20%। अब आप बोलिए 5% आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, उसके सामने आपको एक महीने में 20% मिल रहा है, वो भी आपको नहीं चाहिए। फिर आप बोलोगे ये चोर बाजार है। अरे यार, गलती आपकी और गरीब मार्केट को गालियां दे रहे हो। तो फिर अगर मार्केट गलत होता तो दुनिया के टॉप 1000 में से 700 लोग क्यों इस मार्केट के थे? आप फोर्ब्स की लिस्ट देख लो, 700 लोग उसमें से इस मार्केट में पड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी ने टाइम नहीं किया होगा रिलायंस के शेयर की ये सब चीजें करने के लिए? उसको क्या ख्वाब आया था 900 रुपए में? और 900 में ही क्यों आया? उससे पहले तो 1500 था, तो 1500 का ही 2000 कर सकता था ना। नहीं, 900 उसको लगा कि ये बॉटम आउट हो गया, तो उसके पास भी चार्ट्स देखने वाले लोग हैं। ये चार्ट्स आपको अलग अलग चीजें दिखाते हैं। एंड आई एम reiterating, the stocks in which there is no volume, the stocks in where there is no class. आपको अगर शर्ट पहननी है ना, तो आपको ब्रांडेड ही पहननी चाहिए। अगर आप अनब्रांडेड पहनोगे, आपको पता लग जाएगा किसी दिन धोते धोते शर्ट ही धुल जाएगी पूरी। हम में से किसी को भी झोपड़े में नहीं रहना है, सबको महलों में रहना है। क्यों? क्योंकि वो एक क्लास है। तो स्टॉक्स में भी क्लास होती है। ये जो सो कॉल्ड ऑपरेटर है ना, मैं आज नहीं 1986 से मैं इनको टेलीफोन ऑपरेटर बोल रहा हूं। ये खुद तो माल ले लेंगे सस्ते में, आपके गले में डाल देंगे, और वो हमेशा गलत चीज लेंगे जिसमें वॉल्यूम नहीं है। बोलो ना किसी को रिलायंस में ऑपरेट करके दिखा भाई, बोलो किसी को टीसीएस में करके दिखा, मां मर जाएगी उसकी, और रास्ते पे आ जाएगा लेते लेते। 86 में एक स्कैम हुआ था, 92, वो HL वर्सेस यूटीआई का स्कैम हुआ था। HL was a very big broker who was cornering Tata Steel. वो लेते जा रहा था, हम बेचते जा रहे थे, नॉन स्टॉप, हर भाव में बेचा हमने। We exited close to 4% of the capital of Tata Steel, and at that time Tata Steel used to be quoting at 90 rupees a share of 100 face value. ये अजब लग रहा होगा आपको। तो उसको ये लग रहा था कि ये 100 तक तो जाना चाहिए, और 10 रुपए बड़ी चीज होती थी उस जमाने में। पर शेयर ही कॉर्नर्ड 4%, और यूटीआई ने 3.5% उसमें से दिया था। लास्ट में हमने कितने में लिया मालूम? वो शेयर वापस 65 रुपए में। तो कोई भी इतना बड़ा नहीं है, इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी, जो रिलायंस को चला सके। That is where you should enter and exit in technical analysis. That is a class of shares you should buy. ये तो छोड़िए आप, टेक्निकल एनालिसिस इज सो श्रूड, वो आपको ये बता देगा कि अगली जो 4 गाड़ियां आ रही हैं, इसमें से ऑड नंबर लास्ट कौन सा है, इवन नंबर कौन सा है। जो बड़ी बेटिंग करते हैं ना, वो सब टेक्निकल एनालिसिस पे करते हैं कि बुमराह, जसप्रीत बुमराह अब अगला बॉल डालेगा, उसको चौका लगेगा या बोल्ड होएगा सामने वाला। ये भी टेक्निकल एनालिसिस होते हैं इसमें। It is a not 45-minute time that I can teach you technical analysis. I can just give you a guideline to technical analysis. मैं आज तक सीख रहा हूं, 35 साल तो मेरे कंप्लीट हो गए इस मार्केट में, मैं तो अभी भी सीख रहा हूं।
छोटे छोटे बच्चे आगे मेरे को सिखा जाते हैं, नहीं सर ये तो देखो, अरे यार ये तो मैंने देखा ही नहीं। क्योंकि हम लोग वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट गॉड। It was only those who do technical analysis saw a rally after 10,300. And I was the one, go on LinkedIn, मेरा LinkedIn पे है रोटेरियन प्रमीत सिंह सबरवाल, आप वहां जाइए, मेरे टॉपिक्स देख लीजिए। मैंने 7,800 पे बोल दिया था ये मार्केट यहाँ से सीधा 11,000 जा रहा है। क्या देख के बोला था मैंने? मेरे को कोई कबूतर आके नहीं बता के गया था, वो टेक्निकल एनालिसिस ने ही मुझे बताया था कि भैया यहाँ बॉटम आउट हो गया, बहुत से बहुत रिस्क होगा, 200-300 पॉइंट का रिस्क होगा। वहां पे लिखा है क्लियरली। 7,800 में आज इंडेक्स क्या है? 11,300-400। कितना रिटर्न हो गया? ऑलमोस्ट 50%, इनफैक्ट मोर। इसीलिए तो 22% दे दिया ना हमने 6 महीने में। वो कहां से आया रिटर्न? मैं थोड़ी घर से लेके गया था। टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताएगा कि मोदी को कितने वोट मिलेंगे। टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताएगा कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताएगा सोने का भाव बढ़ेगा या गिरेगा। टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताएगा ये बिल्डिंग में ये फ्लोर पे ये फ्लैट लेना है। क्या नहीं बताता? वो सब कुछ बताता। ये भी बताएगा आपको आज हॉस्पिटल में कितने लड़के और कितने लड़कियां पैदा होंगे। मैं आपको नहीं समझा सकता टेक्निकल एनालिसिस, बिकॉज यू हैव टू गो ऑन ऑटो पायलट एंड डू इट योरसेल्फ। There are no rules in technical analysis. You have to go by your own rules. But the main rules I am already telling you, don't stick to a stock and marry it. Marry the return. जिसने भी बोला ना मैं 100% तक नहीं बेचूंगा, वो गया। सोच लो, राइट हिम ऑफ। बोल लो आज ही तेरा क्रियाक्रम। और जिसने बोला ना मैं 10-20% में निकल जाऊंगा, लिख के लेना, वो साल में पैसा डबल कर लेगा। क्योंकि मौके टेक्निकल एनालिसिस इतने देते हैं आपको, इतने देते हैं आपको। दिन में करना है, हफ्ते में करना है, महीने में करना है, क्वार्टर में करना है, साल में करना है, सब आपको मिल जाएगा। करेंसी, डॉलर के ऊपर सबसे बढ़िया काम करता है टेक्निकल एनालिसिस। क्यों? द करेंसी मार्केट इज 17 टाइम्स बिगर देन द इक्विटी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। क्या आप डॉलर को मैनिपुलेट कर सकते हो? फेड नहीं कर सकता जी, जाओ आप ट्राई कर लो, कितना भी छाप ले वो डॉलर अपनी अपनी रीत से ही चलेगा। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपको बता देगा कि डॉलर यहां से पिटने वाला है या नहीं पिटेगा। हम लोगों ने किसी एक्सपोर्टर को बोला था अभी, जिसने हमारी बात सुनी नहीं, कि भाई तू डॉलर शॉर्ट कर दे और यूरो लॉन्ग हो जा। नहीं सुना उसने, उल्टा हो गया पूरा उसको। वो डॉलर लॉन्ग और यूरो शॉर्ट था। 82 वाला यूरो 86 हो गया और डॉलर 4 रुपए नीचे, मतलब टोटल नुकसान 8 रुपए। 70 रुपए पे 8 रुपए नुकसान, सोच लो। और वॉल्यूम उसके इतने वॉल्यूम करके बैठा है कि पता नहीं क्या होगा उसको। So all I can say is that if you want another session, I will always be open. But first you do it yourself and then come back to me. What have you understood and what have you not understood? तब मजा आएगा मुझे आपको बताने का। सी आपने किधर कदम ही नहीं रखा तो मैं आपको कैसे बताऊंगा वो कितनी जलेगी आपकी टांग। पहले देख तो लो, उसका चस्का तो ले लो। हाँ, ये 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी। आपको यहां से दिल्ली जाना है बॉम्बे से, तो वो रास्ता कौन सा है वो आपको लाइन चार्ट बता देगा। कहाँ पे आपको नाश्ता करना है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, कहाँ पे आपको सोना है, वो आपको बार चार्ट बता देगा। और ट्रैफिक कहाँ कितना ज्यादा था वो आपको कैंडल स्टिक्स बताएंगे। किसी भी चीज में जिसमें वॉल्यूम नहीं है उसको हाथ नहीं लगाना। फॉरगेट टेक्निकल एनालिसिस।
जितनी सेल बाटा की और किसी शू कंपनी की है ही नहीं इंडिया में, मोनोपोली है उधर। इसीलिए वो अफोर्ड कर सकते हैं, अगले 6 महीने में भी आप बूट वापस ले जाओ तो बोलेंगे ले ले भाई, हम ठीक करके दे देंगे। जाओ आप ठेले पे, वो पहचानेगा ही नहीं आपको, कौन मेरे से कब लिया था, मैं तो ये बेचता ही नहीं। वॉल्यूम के साथ कोई भी शेयर हो उसमें आप ट्रेड करें। और मैं आज भी बोलता हूं आपको, वॉरेन बफेट इज नॉट अ ट्रेडर, इज एन इन्वेस्टर। राधा किशन दमानी is not a trader, he's an investor. The funds in the world are only investors, they are not traders. Yes, you can be a hedger. आपने अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया है, उसके सामने अगर ऐसे टेस्टिंग टाइम्स में आपने 1 करोड़ का निफ्टी सामने बेच दिया तो यू आर अ श्रूड इन्वेस्टर। कि कल अगर मार्केट टैंक हुई और आपका 1 करोड़ 70 लाख हो गया तो आपको 25 लाख रुपए तो रिटर्न आपकी उल्टी पोजीशन ही दे देगी। आपने अगर मर्सिडीज खरीदी हुई है तो आप उसको गराज में ही रखोगे ना, रास्ते पे तो नहीं खड़े करोगे, नहीं तो आएगा कोई बच्चा पत्थर लेके टैंग हेडलाइट पे मार देगा, आप लग गए काम पे। हेजिंग जरूर करनी चाहिए, उसके लिए फ्यूचर ऑप्शन है, खेलना नहीं चाहिए वरना आप आग से खेल रहे हैं। ओके, आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड माय टाइम allocated to me. गपशप तो चलती रहेगी मेरी, वो तो बंद ही नहीं होनी। तो परमित जी, लोग आपने ये बताया टेक्निकल एनालिसिस बहुत जरूरी है शेयर्स के लिए, वॉल्यूम्स के लिए, लेकिन सब लोग उसकी अगली बात जानना चाहते हैं, कैसे उसको टेक्निकल एनालिसिस को सीखें? क्या कोई बुक आप रिकमेंड करेंगे या उसको कैसे स्टार्ट करें? आपका सेशन तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट रखेंगे ही रखेंगे, पर उसके पहले हम लोग अपना बेसिक प्रिपरेशन कैसे रखें वही जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपने इतना क्यूरियोसिटी पैदा कर दी। कोई और कुछ बोल रहा है? कोई नहीं बोल। ओके ओके फाइन। नहीं आवाज आई पीछे से, पता नहीं किसकी आई, लेकिन ठीक है। फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर देंगे इसके बाद, फिर आपसे बात ही करेंगे। ओके, सवाल आपका ये था कि हाउ टू स्टार्ट। ओके, बुक्स, क्लासेस, ये सब पैसे बनाने के लिए होती है। जो ओरिजिनल सीख है ना वो आपको खुद ही करनी चाहिए। मैंने कभी भी कोई क्लासेस नहीं ज्वाइन की, लेकिन मैं जो क्लास देता है उसको भी क्लास पे लगा सकता। तो उसका तरीका ये है कि फ्री में there is a website on the Google called Chart Inc. CHARTINK. Chart Inc. It's a free website. उसको आप उधर जाएं, जैसे आप जाएंगे वहां पे ना आपको आ जाएगा आपको क्या चाहिए। आप सिर्फ उसमें एक निफ्टी का चार्ट खोल लीजिए। जैसे आप निफ्टी का चार्ट खोलेंगे ना, आपको ना हिल्स नजर आएंगी, हाउ द निफ्टी हैज मूव्ड। और वो हिल हिमालय की तरह होगी, सिर्फ ऊंची ही जाती जाएगी, क्योंकि निफ्टी ऊपर ही गया, नीचे नहीं आया। हाँ, बीच में इट विल नॉट गो वन वे, इट विल बी zigzag, ओके, लाइक अ नेशनल हाईवे। उधर ऊपर आप देखेंगे आपको काफी सारी चीजें नजर आएंगी कि आपको लाइन चार्ट चाहिए, बार चार्ट चाहिए, कैंडल स्टिक्स चाहिए। जब आप उसको खोलोगे नहीं, जब तक आप उसको देखोगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। और जैसे ही आप खोलोगे, उसमें एक साइड में जो आइकॉन्स है उसमें से आपको वॉल्यूम दिखेगा, तो वो वॉल्यूम को अटैच कर देना चार्ट के साथ नीचे। जैसे ही आप नीचे उसको अटैच करोगे, आपको ये नजर आ जाएगा कि जब ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम ज्यादा दिखेगी, जब नीचे आ रहा था तब ज्यादा दिखेगी, बीच में वॉल्यूम कम ज्यादा नजर आएगी।
So you start with charting because it is free. Once you do it yourself, please do not, I do not recommend any book. I don't read books. क्योंकि वो बेचने के लिए ही इस्तेमाल होती हैं, और ज्यादातर जो बुक्स है ना टेक्निकल एनालिसिस पे, वो वर्ल्ड मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में नहीं है. एंड इंडियन मार्केट्स आर डिफरेंट ओवर वर्ल्ड मार्केट्स. सो यू विल कम अंडर द क्लचेस ऑफ गेटिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन. आपको अगर $1 एप्पल को बढ़ाना है ना, तो आपको 1 करोड़ शेयर लेने पड़ेंगे. तो यू कैनॉट मैच एप्पल विद रिलायंस. Their style is different, our style is different. Their volumes are 20 times our volumes. Because we are a growing economy, our markets are very shallow. इसीलिए अमेरिकन मार्केट्स अगर आप देखेंगे, चाइना का कुछ भी हो रहा होगा वो हिलेगा ही नहीं. लेकिन अगर इंडिया का मार्केट, चाइना में कुछ हुआ तो नीचे, अमेरिका में कुछ हुआ तो नीचे, यूरोप में कुछ हुआ तो नीचे. Because our market is run by them. जो कैलिफोर्निया में बैठा है और जिसने 2% एलोकेट किया इंडिया को, उसको फर्क नहीं पड़ता. बोला ठीक है ना यार, 2% नुकसान हो गया तो क्या हो गया, कौन सा हाथी घोड़े मेरा जा रहा है. लेकिन हमारा तो 100% एलोकेटेड है, तो हम तो मस्ती ही नहीं कर सकते. इसीलिए मैंने आपको बोला चार्टिंग में आप जाइए. ठीक है, आप अगर वो भी नहीं चाहते, रेडी चार्ट्स देखना चाहते हैं, जो लाइव चार्ट्स होते हैं, चलो go to investing.com, go to any world market, investing.com. हम इन्वेस्ट करते हैं ना पैसा, investing.com, उस पे आप जाइए. किसी भी पूरे उधर आएगा आपको, वहां पे फ्यूचर मार्केट्स, उसको आप प्रेस करिए. वहां पे पूरी दुनिया के मार्केट्स जो लाइव है वो आपको लाइव दिखेंगे. उनमें से अगर आपको निफ्टी देखना है तो निफ्टी पे प्रेस करिए. जैसे आप निफ्टी पे प्रेस करेंगे तो सिंगापुर निफ्टी के चार्ट्स आएंगे उसमें, और यू कैन एनालाइज बिकॉज एवरीथिंग इज लाइव ऑन दैट. और उसके ऊपर सारे जितने भी चीजें चाहिए वो सब मिल जाएंगे. पैसा नहीं खर्चना. उज्जैन वालों से मैं पैसा खर्चा कराऊंगा, मरना मेरे को, महाकालेश्वर एंट्री नहीं देगा मेरे को. तो ये आप पहले करिए, फिर आगे देखते हैं. हम आते हैं जी उधर पैसा खर्चने, आप थोड़ी आओगे. हम वहां पे दान धर्म करते हैं, मरना है कि आपसे दान धर्म करवा के. और पूछिए जी, क्या पूछना है. विनय जी. तो मेरा तो सर से एक ही क्वेश्चन है. आपने जब शुरुआत की थी तो जिनका नाम लिया था, उनका सक्सेस फार्मूला क्या है, जुनजुनवाला साहब का? टेक्निकल एनालिसिस. नहीं, वही फार्मूला क्या था, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ उनका एकदम से पैसा बना और जो बनते चला गया? Okay. His father was in fact an IT commissioner, and he was not happy with Rakesh, so he told him, you go away from the house. तो वो चला गया हैदराबाद अपनी बहन के पास. उसके जीजाजी बहुत बड़े ज्वेलर है उधर. तो ऐसे ही वो, उसको सूटे मारने का बहुत शौक था, और किसी पान दुकान पे खड़ा था तो कोई स्टॉक्स की बात कर रहा था, तो इसने भी सुना, पसंद आया. सुना बिकॉज ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो सुना तो बोला कि जीजा को बोला कि यार मेरे को 5,000 रुपए दे दे, मैं तेरे को लौटा दूंगा, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ. वो 5,000 का आज उसका 20,000 करोड़ रुपया हो गया. मैंने उसको पहले, ये चाइना गेट होता था ना पेडर रोड पे, आपको पता है, वो पियानो बार, रात को 4 बजे तक राकेश को मैंने उधर बैठे हुए देखा है, फुल ऑन दारू में टाइट, खाली चार्ट्स देख रहे, जब किसी को चार्ट का स्पेलिंग भी नहीं पता. और उसका ऊपर आने का चांस एक ही था कि उसने 10 लोगों से 2-2 लाख रुपए लिया था उस टाइम पे, 18% पे, कि मैं तुमको हर साल लौटाऊंगा. उसने लौटाया भी. एक चीज है राकेश, कभी भी पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं करता. कुछ भी हो जाए
वो पेमेंट में कभी नहीं डिफॉल्ट करता, 2 दिन पहले ही देता, 2 दिन बाद में नहीं देता। दूसरा, उसका जो सबसे बड़ा पहला उसने जो पैसा बनाया था वो था सिसा गोवा में। उसने एक दिन में करीबन 4 लाख रुपए कमाया था 10 लाख के ऊपर, और सबका पैसा लौटा दिया था। उसके बाद उसने खुद का ही काम शुरू किया था। वो 4 लाख का उसने टाटा पावर लिया था जो उसका 16 लाख में बिका था। फिर तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। एंड ऐसा नहीं कि उसको तकलीफ नहीं आई, हर्षद ने उसको बहुत बुरी तरह हालत उसकी खराब कर दी थी, क्योंकि ये सोच के करने वाले लोग हैं, ये तेजी भी करते हैं मंदी भी करते हैं। तो एक टाइम पे 4 बंदे फंस गए थे, वो चारों का इनकी चारों की चौकड़ी थी। हर्षद के सामने ये लोग फंस गए थे, हर्षद के घर के बाहर भी खड़े रहे ये लोग 20-22 दिन कि हर्षद मिले। हर्षद को इतना रुबाब था कि उसको एक ही चीज ने मारा था हर्षद को। हर्षद वाज वेरी क्लेवर, वाज वेरी shrewd and he used to only pick good stocks. उसको एक ही चीज ने मारा और वो था उसका घमंड। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और घमंड जिसको भी आ गया वो तो फिर बच ही नहीं सकता। This is a proven fact of life. So all I can say is that Rakesh never looked back after Harshad's collapse, because जितना हर्षद ने पैसा, हर्षद की मंदी में पैसा गंवाया लोगों ने, वो पूरा पैसा राकेश, राधाकिशन, निमिष और एक और 4 बंदों ने कमाया। हाँ, राजू चार्टिस्ट, चार्ट देखने वाला, उसका नाम ही राजू चार्टिस्ट था। ओके, एंड आई न्यू ऑल दीज 4 पीपल वेरी वेल, एंड वेरी ऑनेस्टली जितने भी दुनिया के कामयाब लोग हैं सारे ही किसी ना किसी रूप में चार्ट्स देखते। आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस की रिपोर्ट देखेंगे उसमें भी चार्ट है, क्योंकि सामने वाले को ये तो पता लगे कि जा कहां रहा है ये। सोने का आपको चार्ट मिलेगा, प्रॉपर्टीज का आपको चार्ट मिलेगा, हर चीज का चार्ट तो रहता ही है। विदाउट चार्ट्स यू कैन नॉट वर्क। नो, आई एम सॉरी टू से, फंडामेंटल एनालिसिस ऑन इट्स ओन इज अ फेलियर। चार्ट्स आपको देखने पड़ेंगे, बिकॉज चार्ट इज द ओनली थिंग दैट टाइम्स द मार्केट। ठीक है जी, रिलायंस अच्छा था, है और रहेगा, लेकिन व्हेन टू बाय इट, विच इज इंपॉर्टेंट। अभी का अभी आप खरीदोगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा तकलीफ लेनी पड़े, तो इसलिए चार्ट्स देखना बहुत जरूरी होता है। और बोलिए जी। Viken, do you have any question? No, it was quite a learning experience for me. मेरे डैड भी स्टॉक्स में रहे हैं, and he has met Ramkrishn Damani as well long time back when he was working in Bombay. So I really enjoyed the session, and he operates all the same principles जो परमीत जी का है, technicals as well as fundamentals, balanced approach, and I think very valuable session, but no questions. Thank you, Viken. Parmeet ji, You're open to ask me any question, no problem. Abhay, I have a query. This is Gautam from Pune. Yes. Sir, I am pretty much new into this, so I wanted to ask that when we are looking at a line graph or a bar graph, it shows us a trend, either upwards or a downwards. Should we also reason why this upward or downward trend occurred, or it's a cyclic pattern? No. See, please understand, anything and everything in life happens in a pattern. You cannot laugh 24 hours. You cannot cry 24 hours. You cannot eat 24 hours. You cannot sleep 24 hours. So everything has a pattern in life. What is a company? It is something which is run by human beings. So if you cannot laugh 24 hours, how can the company laugh 24 hours? So the good and bad is determined by humans only.
Economy is not run by Modi alone. Economy is run by his team. It's run by professionals from different places, and they are paid more than he is paid. So a line chart is nothing but it shows you just a trend. Where is the stock going? As I reiterated, if I'm flying to Lohegaon airport, there is a pattern in which the plane flies. It is only a 10-11 minute flight. But in that 11 minutes, the pilot has to take off, take a U-turn, head towards Pune, take height, fly over the mountains in Lonavala and Khandala, and then descend. So the stock markets also have a trend. They cannot go up one-sided. They will move finally up, but there has to be a timing when you need to take the next downturn to make the next upturn. You cannot take the upturn to take a downturn. So the line chart tells you where the upturn is happening, where the downturn is happening. I think it's better. Is clear now? Yes. Yes, sir. Thank you. Parmesh sir, I have one question. Yes, sir. ये तो मेरे बॉस का नाम आ गया, मित्तल. Thank you. So Pramodji, just introduce yourself and then ask the question. Then Parmesh ji will better able to answer your question. Myself Pramod Mittal. I'm from Government Engineering College Ujjain, 1993 batch. Right now I am in Baku, Azerbaijan. Okay. So I'm working as in oil and gas sector, and I have interest in finance the last 10 years. So I have one question regarding validity of technical chart time period. Like is valid for 3 months or 1 year, or suppose I am looking the chart of Nifty 50. So it will be 3 months applicable or 6 months or 1 year. सर बात ऐसी है, ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपने सिर्फ एक दिन का स्टॉक लेना है, एक हफ्ते का स्टॉक लेना है, एक महीने का स्टॉक लेना है, 3 महीने का स्टॉक लेना है, 3 साल का लेना है, या जिंदगी भर लेके उसके साथ शादी करनी है. सर हम सब की शादियां एक ही बार होती हैं. बिल्कुल सही. लेकिन हमारी आंखें नहीं रुकती जब हम किसी खूबसूरत को देखते हैं. तो वी कैन नॉट बाय ऑल स्टॉक्स, वी हैव टू बाय ओनली वन. लाइक जिसके पास रिलायंस है, मैं चैलेंज मारता हूं, जो उसने कभी बेचने की सोची ही नहीं, और जिसने बेच दी है वो आज तक रो रहा है, यार मैंने क्यों बेचा. So you have to determine what you want. क्या आपको पेटी कैश चाहिए, कि आपको जिंदगी भर की दौलत चाहिए, तो ये आपको डिटरमाइन करना है सर. तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी. और एक बात और बता देता हूं, जो डेली चार्ट होता है, जो वीकली चार्ट होता है, वो जमीन आसमान का फर्क होता है, और जो वीकली और मंथली होता है उसमें भी जमीन आसमान का फर्क होता है. क्योंकि डेली आपको सिर्फ दिन की बताएगा. हो सकता है वीकली आपको ये बताए कि स्टॉक खराब है, लेकिन डेली आपको ये बता दे कि आज आप लोगे तो आप कमाओगे. तो अगर मैं सही समझा, तो अगर मुझे 2 साल के लिए कोई स्टॉक लेना है तो मुझे उसका ईयरली चार्ट देखना चाहिए? नहीं, आपको मंथली देखना चाहिए. Okay. 2 साल में आपको क्या दिखाएगा ईयरली में सिर्फ सिर्फ 2 ही बार आएंगे या 2 ही कैंडल आएगी. आपको मंथली देखोगे तो आपको 24 महीने का दिखेगा. Okay. हाँ, आपने अगर 20 साल के लिए लेना है तो फिर आपको ईयरली देखना चाहिए कि पिछले 50 साल से ये स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया. ठीक है जी, थैंक यू. Parmesh ji, this is Manish Vyas from Pune. Yes. परमित जी, जैसे आपने बोला कि हमको टेक्निकल एनालिसिस में अपने इमोशंस इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, तो क्या हम किसी सॉफ्टवेयर पे रिलाई कर सकते हैं क्या? जैसे अगर आप investing.com पे जाएंगे
तो उसमें अगर टेक्निकल सेक्शन में जाते हैं तो वो रिकमेंडेशन करता है कि 15 मिनट बेसिस पे या आवरली बेसिस पे क्या नहीं, रिकमेंडेशन है? वो एक्चुअल है, वो एक्चुअल है, हाँ वो अपनी तरफ से नहीं डाल रहा है, वो हाँ एक्चुअल प्राइस बता रहा है। वो राइट। आपको डिटरमाइन करना है कि वो लेना चाहिए या बेचना चाहिए। अच्छा सी वो मतलब जो सी चार्ट्स इज नथिंग बट हिस्टोरिकल, कि अलेक्जेंडर इंडिया आया था, कौन से रास्ते से आया था, पहली लड़ाई पोरस से हुई थी, लास्ट में हाँ चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ते लड़ते तक के वापस चला गया था। तो ये डिटरमाइन करता है चार्ट। ओके, बट अगर वो रिकमेंड करता है कि ये डेली बेसिस में इट इज बाय रिकमेंडेड, सो वी शुड ट्रस्ट इट और नॉट? Daily basis is only for daily, but if you are buying delivery of the stock, then it has to be sold during the day itself. ओके हो सकता है अगले दिन फिर पटक दे उसको। हाँ इसीलिए मैं जो रिलाई करता हूँ, मैं यूजुअली मंथली चार्ट पे रिलाई करता हूँ, और उसका डेटा मेरे पास रहता है कम से कम 20 साल का, कि हाउ हैज दिस स्टॉक परफॉर्म ऑन अ मंथली बेसिस। क्योंकि हम तो इन्वेस्टर हैं, हम अगर आपके लिए ले रहे हैं तो वो एक महीने में तो नहीं बेचेंगे, हाँ और अगर एक महीने में मेरा 20% बन गया तो मैं क्यों नहीं बेचूंगा भाई, मेरे को थोड़ी शादी करनी है उससे। So that's the way it is. थैंक्स परमीत। Parmeet ji, back again. Vikin, sorry I didn't introduce myself. I am from Greater Noida. नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए। तो एक क्वेश्चन सर इज देयर कि टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे हाउ डू यू नो टेक अ कॉल, व्हेन टू बाय अ कॉल एंड व्हेन अ स्टॉक फ्यूचर? Technical analysis will never work on futures. Okay. Technical analysis is only for those who want to invest. And any which ways, I am a very wrong. फ्यूचर्स में किसी को कमाते नहीं देखा, घर लुटाते जरूर देखा। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में वॉल्यूम क्यों होता है, इतना वॉल्यूम क्यों होता है? क्योंकि दुनिया भर के गधे उधर है, और मेरे को एक भी बता दो जिसने कमा के निकला होगा वहां से। हाँ, आज कमा लिया, कल डबल पोजीशन लेके पूरा घर ही लुटा दिया। मुझे तो वो काम नहीं आते जी, मैं ना करूंगा, वो कभी भी नहीं किया, आज तक नहीं किया, तो आप क्या करूंगा? Okay. मैं इतना डीट हूं कि मैं स्टॉप लॉस भी नहीं मानता। मैंने ले लिया तो ले लिया भाई, उसके बाद वो आधा भी हो जाए तो मेरे को कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं कंपनी देख के लेता हूँ। पहले उस कंपनी की आंतड़ियां गिनता हूँ फंडामेंटल्स में, फिर उसको टाइम करता हूँ। ओके, थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी। परमीत जी, दिस इज अभिषेक। परमीत जी, हेलो, आई एम मनीष फ्रॉम दिल्ली। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। अभी आपने बोला कि अगर कोई शेयर मेरे पास है और मुझे उसमें अगर 15-20% का अगर मुझे प्रॉफिट दिखता है तो मुझे उसको निकाल देना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ अच्छे शेयर्स जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, लाइक यू सेड ना रिलायंस के केस में या इन्फोसिस के केस में भी मुझे ऐसा करना है कि 15-20% मेरा हो गया तो मैं निकल लूं, बिकॉज जनरली आई आल्सो कीप इन दैट वे कि अगर मेरा 15-20% हो गया तो मैं उससे निकल लेता हूं, प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, देन अगेन आई थिंक आई शुड बाय इट और शुड नॉट बाय इट। बट रिलायंस के केस में थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। मैंने उसको बेचे थे बट टुडे आई एम फीलिंग आई एम चीटेड, मुझे बेचना नहीं चाहिए था, मेरा नुकसान हुआ। तो व्हाट शुड आई डू इन दैट केस? रिलायंस कोई बेचता नहीं है। अच्छा, तो देन यू हैव टू वेरी सिलेक्टिव दैट सम फॉर सम स्टॉक यू हैव टू मैरी, some you have to, you should just not marry. Just flirt. Okay. सर, मेरे फादर इन लॉ ने मेरे को पूछा था शादी से पहले कि तेरे को मॉडल चाहिए कि हाउसवाइफ। मैं बोला सर एक ही चाहिए, हाउसवाइफ, मॉडल्स तो बहुत घूमती है हमारे साथ। राइट, थैंक यू सर। परमीत साहब, ऐसा है कि सुनते ही जाएं, आपको तो मतलब मैंने कहा था शुरुआत में कि 5 घंटा भी शायद कम पड़ेगा क्योंकि आपका जो स्टाइल है ना वो नॉलेज पिल जैसे वो कुनेन की गोली होती है ना, कुछ लोग तो कुनेन की गोली खिलाने में लगती है, लेकिन आप ऐसा खिलाते हैं चाशनी में चढ़ा के, पता नहीं चलता नॉलेज भी कब आ गया, आदमी को कब विजडम भी आ गई पता भी नहीं चला।
Adya, you want to say something? मैं बिल्कुल आपको हाँ जी बोलिए जी। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ महाजन से कि आपने थॉट प्रोसेस पे काम किया है। जो भी कुछ आज आपने बोला है, जो डेटा है कि उस मेरे डेटा हाथ को में कोई सोचना किताब नहीं है। है, मेरे हाथ में कोई किताब नहीं है। हाँ, बट आपने आज के आपका जो सेशन है वो ये है कि कैसे सोचें। बस इस विषय पर मुझे समझ में आया है कि जस्ट एक थॉट प्रोसेस आप क्या माइंड सेट कैसा रखें, यही क्लियर हुआ है आज। वेरी नाइस, नाइस। थैंक यू सर। बात ऐसी है कि विनय बाबू, बात ऐसी है कि जो खुद नहीं लेता ना, वो जब बोलता है तो वो हकीकत बोलता है। अगर मैंने रिलायंस लेके रखा हो ना, मैं कभी भी रिलायंस को गलत नहीं बोल सकता। अगर मैंने एसीसी लिया है तो मैं कभी भी एसीसी को गलत नहीं बोल सकता। लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया ना, तो मैं सही टाइम पे बोलूंगा अब लेना चाहिए और अब बेचना चाहिए। You have to be a ruthless buyer, but you have to be a bigger ruthless seller. तब जाके पैसा बनेगा। और एक बात कि मैं आई एम रेडी टू say I am ready to challenge anybody on this कि अगर आपको लालच नहीं होगी ना, ये बाजार आपको इतना पैसा देगा कि आप उसको बटोर बटोर के थक जाओगे। मरता कौन है? लालच वाले मरते। अरे वो 20% दे रहा है आपको एक महीने में, या 20% आपको 4 साल में भी नहीं मिलने वाला, और आपको नहीं लेना भाई। एक सर्किट लगा, कितने बेचते हैं? कोई भी नहीं बेचता, सिर्फ प्रमित बेचता। कल किसने देखा? नीचे का सर्किट लग जाएगा। परमीत जी, आपको हम लोग कहाँ फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे? लाइक if you want to follow you, your technical analysis or something like this. No, I'll tell you. You can follow me on LinkedIn. I will just show you. This is how it is. You can see it by yourself. I'm there on LinkedIn. You can follow me on LinkedIn. And on LinkedIn, I do a lot of writing on behalf of my company because I'm a partner with them. So it's like this that I can show you. मैं वो लिंक फॉरवर्ड भी कर दूंगा। I will forward the link, sir. Yeah, sure. Vinay, yeah. आप हो ना मेरे LinkedIn पे? बिल्कुल मैं पढ़ता भी हूँ सर। हाँ जी। Yeah, you can forward it, no problem. I will forward the link. नहीं, आपको ज्ञान बहुत मिलेगा उसमें, क्योंकि हर हफ्ते मैं इकोनॉमी पे बहुत लिखता हूँ। Why is India different over others? आप पढ़ोगे, आपको बहुत मजा आएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, स्टॉक मार्केट इज लाइक अ जेम्स बॉन्ड मूवी। एवरी मूव इज डिफरेंट। आप सोचोगे कुछ होगा, कुछ आपको लग रहा होगा कि वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, पता लगा वो वेस्ट इंडीज पहुंच गया। तो इट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि आप जैसे लोग हैं जिसने स्टॉक मार्केट को इतना पैशन बना रखा है, क्योंकि कई बार भी जब आपके रूम में आता था मैं, जो टेक्निकल आपका तो अलग ही रिसर्च रूम रहता था, तो काइंड ऑफ एनर्जी वी यूज्ड टू फील, इट वाज डिफरेंट। हम लोग सेल्स से बिजनेस से थके मांदे आते थे वहां पे, अपना बैटरी चार्ज करके निकल जाते थे कि चलो भाई मार्केट में ऐसा लग रहा है, आपके पास नई स्टोरी फिर से आ गई। सर हमारा एक क्लाइंट है NNM में, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर। उसने पैसा सिद्धार्थ के उधर भी लगाया हुआ है, हमारे उधर भी लगाया हुआ है, लेकिन ही इज अ वेरी वेरी बिग मैन, वेरी बिग मैन। आप सोच सकते हैं अगर सिद्धार्थ के उधर लगाया और हमारे इधर लगाया है, और दूसरों के पास, कईयों के पास एडलवाइस में लगाया हुआ है, IIFL में लगाया हुआ है, तो आप सोचिए वो कितना बड़ा आदमी होगा। वो एक ही बात बोलता है कि मेरे को दारू से उतना नशा नहीं होता जितना बेवकूफ तेरी बात सुन के होता है। मैं उसको क्या बोलूं, बोलता एंड ही इज अ क्रिश्चियन, ओके, ही इज अ क्रिश्चियन जेंटलमैन। रोज बिना नागा वो दारू पीता है। मेरे को बोलता है दारू पीने की भूख तेरे से जागती है, तेरे से बात करके जाता हूँ, लास्ट में सीधा जाके दारू शुरू हो जाता है मेरा। बोलता उस दिन मजा अलग आता है कि ये बोल क्या रहा था आज मेरे को। आप ये जो लिंक फॉलो करेंगे ना, आप अगर शुरू से मैंने जो लिखा है आप अगर पढ़ेंगे उसको, रिलीजियसली बोलता हूँ, रिलीजियसली आप बोलता हूँ, अगर आप शुरू से पढ़ेंगे मैंने जो लिखा है, you will see that the market has always gone in the way I have predicted. I have predicted before 7,800 came, it will come to 7,800, and then I predicted from here it will go to 11,000.
आप पढ़ोगे आपको बहुत आनंद आएगा। सर ये कब लिखोगे कि 11,000 के बाद अब किधर जाने वाला है? ओके ओके, दिस इज नॉट द टाइम टू बाय। इतना मैं Okay, बोल दिया sir. काफी हो गया। Yeah. It's enough. Yeah, yeah, this is not the time to buy. You will get anything and everything at a Diwali discount of at least, if not more, at least 20% from here. I'm sitting on cash, total cash. I'm not doing anything. I'm sitting on cash. मैंने जो लूट मचानी थी मचा ली। आपको ये भी बोल दिया ना मैंने 6 महीने में 22% दे दिया। अब इससे ऊपर मैं भगवान तो नहीं हूं। लोग बोलते हैं कि लोगों के AUM उड़ गए, मैं तो बोलता हूं कोविड आया तो मेरा AUM 4 गुना हो गया। Final tip of the day. Huh? This is the final tip of the day. No, the Cash final पे tip बैठो। of the day is final। मेरे को कोई पूछता है ना क्या लेने जैसा लगता है, मैं बोलता हूँ यार भगवान का नाम लेने जैसा लगता है। I never recommend any stock। और जो मेरे पोर्टफोलियो, जिनके भी मेरे पास पोर्टफोलियो है ना, उनको कभी भी they cannot tell me you can't do this। I never ask, I do it on myself। I never ask anybody। और मैं आपको बोलता हूँ मैं कभी किसी को फॉलो नहीं करता। I only follow religiously what the fundamental says, what the technical says, nothing else। I don't use my brains at all। वो बोले अच्छा लग रहा है ले लो, वो बोले बुरा लग रहा है बेच दो, खत्म। अपना दिमाग क्यों लगाना है? Any more questions? Prameet ji, this is Abhishek. Yes, sir. I'm